day, um, like we have it every year. So I would just like also wanted to announce that we are again having this event at the start of April. So all the people who have joined this, you can register for that as well. We will be having it in the beginning of April, most probably. It will be an on-site event, and the venue will be announced soon. So here are some of our achievements in which we have different sorts of events. Among them, the first is the biggest one, which performed every year. You can see, we perform the Women Tech Maker sessions. We have a panel discussion, code labs. Also, this is the biggest DevFest, which was hosted by GDG Cloud. Actually, a biggest DevFest of Pakistan and Asia, which was individually hosted by GDG Cloud in Islamabad, where we hosted more than 1,300 plus peoples. We have a Build with AI sessions. We have TensorFlow. Also, we used to have a Cloud Next event, but now we don't have it. So instead of this, we have Extended IO. Okay, talking about the Ramzan Skill Drive. So Ramzan Skill Drive is a virtual learning initiative which was designed by GDG Cloud, started by GDG Cloud. Our main purpose is that all the people can enhance their technical and professional skills during Ramzan through the interactive online workshops, which is led by industry experts. Participants are given the hands-on experience. Moving forward, why we started it? Basically, behind starting this, we have three main agendas, which was obviously a skill development. All the people can utilize their time during the Ramzan and enhance their skill on the specific field. We have workshops. Obviously, we also offer the certificates for the session, which is good for your resume and improve your job perspective. And other than this, obviously, it is a community, so it help you guys to connect with new people, with new speakers, with new communities. Okay, so most of the people, if you have joined the last session we had in last week, so here are some snapshots from that. We had different sessions. We had a product management session, a known coding event. It was. Other than this, we have a technical event as well. Okay, so before moving forward to our speaker, I would like you, I would request you guys to follow on our socials so that you can get yourself updated with our new events and activities. I have provided the QR code for the link tree of our social. Other than this, we have our Facebook page, Instagram, LinkedIn, and also you can reach out to our email for any kind of query or confusion. So now I would like to introduce our speaker, who is Sarmat. He will be giving us a hands-on workshop on Firebase. So for that, I will request all of you guys, first of all, join this. First of all, download the Node.js, which uh, which is given in this chat. Like I have pinned the Node.js download option, and moving forward, Sarmad will guide you about the other things. Hi, Sarmad. I would like to take you over. Hello everyone, my name is Sarmat. Had, can you please stop the screen sharing so I can share my screen? So everyone, my name is Sarmat and I'm the core team member of GDG Cloud from last 5 years, and I'm also a Google analyst and data specialist at AdPulse. And previously, I was working as a full stack developer in Nextgrid. I was a GDGSC lead in 2020, and I was also the GitHub campaign, and I'm graduated as a software engineer. So, moving forward to the Firebase, basically, the Node.js, downloaded the Node.js. The link is shared in the chat because we need to the Firebase CLI. For that, you need to download the Node.js. Uh, if everyone have downloaded the Node.js and uh,
चैट में आप बता सकते हैं, डन का मैसेज भेजते हैं, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप के आगे से हमने किस तरह से चीज़ों को रन करना है। ओके, ऑल्सो मुझे सब ये बताएं कि आप में से कितने लोग डेवलपर्स हैं, कितने लोगों का प्रीवियसली फायरबेस पे एक्सपीरियंस है, और फायरबेस आपने किस पर्पस के लिए किया, लाइक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए या नॉर्मल, अगर डेवलपर तो आपने ऑफिस यूज़ के लिए किया होगा या क्लाउड एप्स के लिए किया होगा। सो आई कैन डिसाइड सिनेरियो किस तरह से रखें, ज़्यादा एडवांस लेवल रखें या बिगनर्स लेवल रखें, क्योंकि मैन हमारा मोस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिनका FYP आजकल रन हो रहा है, तो यू कैन अपलोड योर बेसिक प्रोजेक्ट। हम इसमें ये करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम बेसिकली फायरबेस पे अकाउंट बनाएंगे, उस पर डेटाबेस पे ओथ लगाएंगे, लाइक a user can sign up for his account, और उसके बाद एक ईमेल आएगा जिससे अकाउंट वेरीफाई होगा, एंड देन प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा विद ऑल द इंफॉर्मेशन। और उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक नॉर्मल लेवल का बना के रखा हुआ है जो मेरी रिपोजिटरी पे अपलोड है, तो वहाँ से आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट लेना है, एंड देन हम एक साथ सारे उस पर वर्कआउट करेंगे। तो सीइंग द चैट, ओके, मोस्ट ऑफ यू आर बिगनर्स, और कुछ लोगों ने अपने FYP के लिए यूज़ किया है, दैट्स फाइन, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया है, ओके। सो मतलब हम लोग इसका एक नॉर्मल सेशन रखेंगे बिगिनर लेवल, ताकि सब इसको देख सकेंगे हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू फायरबेस, बेसिकली व्हाट इज़ फायरबेस? फायरबेस इज़ अ क्लाउड बेस्ड डेटाबेस। क्लाउड बेस्ड डेटाबेस क्या होता है? मोस्ट ऑफ द डेटाबेस जैसे SQL है, आपके पास और भी सारे डेटाबेसेस होते हैं जिनको रन करने के लिए आपके पास बैकएंड ज़रूरी है, पर फायरबेस इज अ क्लाउड बेस्ड, तो उसके लिए आपको किसी भी किस्म का बैकएंड ज़रूरत नहीं होता, तो आप फ्रंट एंड पे ही उसको इजीली रन आउट कर सकते हैं। और फायरबेस में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे आपके पास रियल टाइम डेटाबेस इज लाइक इन नो टाइम आपका इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिंक हो जाती है फ्रॉम योर ऐप टू डेटाबेस। बहुत यूज हो सकता है, लाइक आप फेसबुक, जीमेल या ईमेल के जरिए अपनी ऐप पे लॉगिन रख सकते हैं, जो कि हम इसमें इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। देन आपके पास होस्टिंग होती है, तो ऑब्वियसली जब इस पे हम अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आपको एक URL प्रोवाइड होगा जो आप अपने पोर्टफोलियो पे लगा सकते हैं। उस पर आप एक स्टैटिक साइट भी बना सकते हैं, डायनामिक साइट भी बना सकते हैं। क्लाउड फंक्शंस बेसिकली ये होते हैं कि आपने अपने ऐप को किस तरह से रन आउट करना है, तो वो ऑप्शंस भी आपके पास होंगे। नोटिफिकेशन का ऑप्शन जो होता है वो मोस्टली ऐप्स के लिए हो, तो हम वेब ऐप पे जा रहे हैं उस पर भी आप ये ऑप्शन रख सकते हैं। फाइबेस यूज़ किस लिए होता है कि ये ईजी टू सेटअप होता है, चाहे वो आपका कोई भी ऐप हो, उसमें आपको ज़्यादा बैकएंड रिक्वायर्ड नहीं होता। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और किसी भी वेब ऐप और मोबाइल ऐप के साथ इजीली ये इंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हम स्टेप्स इस सेशन में लेंगे वो ये है कि फाइबेस के बारे में हमने जान लिया, डेटाबेस के बारे में जानेंगे, स्टेप्स देखेंगे कि फायरबेस पे किस तरह से प्रोजेक्ट अपलोड होता है, होस्टिंग किस तरह से यूज़ की जाती है। फायरबेस पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन अपलोड होती है उसकी स्पेसिफिक एक UID होती है, यूनिक आईडी जिसको कहा जाता है, और हर चीज़ उस यूनिक आईडी से ही रन अप होती है। उसके बाद हम ऑथ लगाएंगे और हम देखेंगे कि यूनिक आईडीज़ किस तरह से वर्क करती हैं। मूविंग ऑन कि हम देखें कि यूनिक आईडी क्या होती है। अब आप राइट साइड पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो हमने जो यूजर्स का लॉगिन बनाएंगे, आप देख सकते हैं यूजर्स आ रहा है, उसकी एक आईडी बनी है, तो ये यूजर है जिसकी ये उसने आईडी बनाई है, और इस आईडी के अंदर उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन आई है। तो इस तरह से जो आईडीज होती हैं वो हर चीज़ की एक यूनिक आईडी प्रोड्यूस होती है फायरबेस में, जिससे इंफॉर्मेशन आपकी ऐप और क्लाउड पे सिंक की जाती है। अगर हम आगे एक रियल टाइम एग्जांपल आ जाएं, तो ये एक होटल है ऑनलाइन जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे आप देख सकते हैं एडमिन की नोटिफिकेशंस आ रही हैं, अटेंडेंस आ रहा है, एक्सपेंस लीव्स आ रही हैं, ऑनलाइन टास्क आ रही हैं, और ये यूजर्स के अकाउंट आ रहे हैं, और चीज़ की स्पेसिफिक आईडी बनी जा रही है। अगर हम प्रोजेक्ट में देखेंगे कि आपने किस तरह से बनानी है।
मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ जाएंगे। हम क्योंकि जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं अभी, वो बेसिकली हम रन कर रहे हैं एक HTML हमने बनाया प्रोजेक्ट HTML पे, लेकिन उस HTML को रन करने के लिए बेसिकली आपको इस रिपॉजिटरी पर जाना होगा। मैंने चैट पे रिपॉजिटरी का लिंक शेयर किया और इसको मैं पिन भी कर देता हूँ, और मैं अपनी स्क्रीन से आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने किस तरह से चीज़ों को वर्कआउट करना है। सो बेसिकली आप गिटहब का मैंने रिपॉजिटरी लिंक शेयर किया। अगर आप मेरे गिटहब की रिपॉजिटरी पे आएंगे तो हम यहाँ से देखते हैं आपने किस तरह से डाउनलोड करना है। आप सिंपली इस लिंक पे जाएंगे तो आप इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और रीडायरेक्ट होने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप फाइल पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रिपॉजिटरी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू स्टार इट, क्योंकि यहाँ पे मीन वाइल इसमें अगर इन केस हम नेक्स्ट वर्कशॉप रखते हैं तो इस पे हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी लगाएंगे। अभी हमने इनिशियली ये स्टेटिक प्रोजेक्ट लगाया है जो कि टोटल HTML और जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो हम सिंपल अपने इस पे आ सकते हैं। यस, यू कैन ऑल्सो क्लोन। आपके पास फ्रॉग का ऑप्शन होता है यहाँ पे, तो अगर आपने अपनी गिटहब पे इसको लेके जाना है तो आप सिंपली फ्रॉग पे क्लिक करेंगे और अपनी इसकी रिपॉजिटरी बनाते हैं। अगर आपका अकाउंट है यहाँ पे, और सिंपली आप उसको यूज कर सकते हैं। इन केस किसी का अगर अकाउंट नहीं है यहाँ पे, तो देन आपको अकाउंट बनाना होगा, देन यू कैन डाउनलोड द फाइल। हमारे पास फाइल डाउनलोड हो गई है। हम इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर सिंपली और डेस्कटॉप पे जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पे भी डिपेंड कि आप उसको किस तरह से करते हैं, ड्राइव में यूज़ कर रहे हैं या आप उसको यूज़ करते हैं। हम इसको PJ का हम दे देते हैं और इसको पे अनजिप कर देते हैं। अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखनी है कि इसने ना फायरबेस मेन के नाम से फोल्डर बना दिया है। तो मैं इस फोल्डर को VS कोड में लेके जाऊँगा। उससे पहले हमें 2-3 टास्क हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं। तो अगर तो आप विंडोज़ यूज़र्स हैं तो मैं विंडोज़ यूज़र के लिए भी बता लेता हूँ, और जो मैक के साथ स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो रिपॉजिटरी हमने डाउनलोड कर ली है। उसके बाद आपने ये करना है कि हमने सबसे पहले इंस्टॉलेशन करनी है सर्वर की। बेसिकली ये ग्लोबल कमांड होती है। जब भी आपने कोई रिएक्ट का स्टैटिक फाइल को रन करना होता है तो आपने एक लोकल सर्वर बनाना होता है। जो यहाँ पे डेवलपर्स होंगे उनको कुछ आइडिया होगा, जो नॉन डेवलपर्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कमांड है जो कि आपने लिखनी है, जिसकी वजह से आपका सर्वर इंस्टॉल होगा। तो ये कमांड मैं आपके साथ चैट में शेयर कर लेता हूँ ताकि हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने Node.js को इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा इंस्टॉलेशन करना। इन केस आपके पास अगर Node.js इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपके लिए ये चीज़ इजी नहीं होगी, पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आपने अपने करना है, विंडोज़ यूज़र्स अपने स्टार्ट पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आपने सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट लिखना है और आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अभी हमने इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। डेट G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, मतलब आपके लैपटॉप में ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो यू डोंट नीड टू गो टू स्पेसिफिक फोल्डर यहाँ पे। तो मैक यूजर्स लिखते हैं sudo लिखते हैं, विंडोज़ यूज़र ने कुछ नहीं लिखना, और सिंपल आपने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है एंड देन एंटर प्रेस करना है। अपने लैपटॉप का पासवर्ड लिखना है और ये यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन स्टिल आई एम इंस्टॉलिंग इट अगेन ताकि आप सबको समझ आ जाए कि किस तरह इंस्टॉल। तो सी ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ तक हम थोड़ी देर रुकते हैं ताकि सब इंस्टॉलेशन सबकी हो जाए। जब हो जाएगी तो यू कैन से डन इन द चैट ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे आ सकें। Meanwhile, we are waiting. Sarmad, you can take some questions from chat. I was feeling कुछ लोगों के questions थे like this. Sachin is asking, यस, do we have to क्वेश्चंस run? Do we have? Q&A सेशन भी ऑन है। यस, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं।
Do you have run command using it? Yes, you have to run it using administrator. आप विंडोज यूजर हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं भी रन करे तो ऑब्वियसली इट विल वर्क, इसमें आपको इशू नहीं आएगा। और समवन आस्क्ड ऊपर के इज इट फ्री? यस, हम फायरबेस का फ्री वर्जन पे ही सारा काम होगा। आपको प्रीमियम पे जाने की, जो इसका ब्लेज वर्जन होता है उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सारा प्रोग्राम जो भी रन अप होगा वो फ्री पे रन होगा। अच्छा, जी, फ्लटर पे भी ये वर्कआउट हो जाता है। अगर आपका एफआईपी का प्रोजेक्ट फ्लटर पे है, निम्रा, तो ये फ्लटर पे भी रन होते हैं। हम जब फायरबेस पे आएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो यू कैन सी दैट, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि फ्लटर के लिए आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। अच्छा, स्टेप रिपीट कर लेते हैं हम। हमने यहाँ पे ये देखा है कि आपने HTML फाइल्स, जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होती हैं, चाहे वो HTML हो, PHP हो या पाइथन हो, उसके लिए आपने एक स्टैटिक सर्वर बनाना होता है ताकि फायरबेस आपके लोकल होस्ट पे रन हो सके। तो उसके लिए आपने एक सर्वर बनाना होता है। सर्वर के लिए आपने npm इंस्टॉल करना है, ये वाला जो कि मैंने चैट में ऑलरेडी दे दिया है। आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है अपने विंडोज या मैक के, और विंडोज यूजर ने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ इसको करना है, पेस्ट करना है। मैक यूजर्स ने पेस्ट करने से पहले लिखना है sudo sudo, देन आपने ये करना है और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। Yes, it will also work for the React as well. और yes, very good. React, Linux और Mac के लिए आपने sudo लिखना होता है ताकि आपके पास एडमिन एक्सेस आ जाए उसको रन करने के लिए। React पे भी रन होता है, लेकिन हमने React का प्रोजेक्ट इसलिए यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि React में विंडोज़ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, तो वो फिर प्रॉपरली रन नहीं हो सकता था, तो इसलिए हमने स्टैटिक एक ऐप लिया जिस पे हम सारा वर्क करें। ओके, एवरीवन हैव डाउनलोडेड। तो हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये करना है कि आपने फाइबेस की जो CLI है उसको इंस्टॉल करना है। तो फाइबेस CLI को इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको ग्लोबल इसका कमांड दे देता हूँ चैट पे। तो आपने इसको चैट पे जाके इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अंबर, यस, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी सेशन के बाद। ओके, तो हम इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपल सेम प्रोसेस है, sudo लिखना है, देन npm इंस्टॉल लिखना है, डैश g मीन्स फॉर ग्लोबल, एंड फायरबेस की CLI इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपने एंटर करना है, तो ये फायरबेस को इंस्टॉल कर लेगा। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी फास्ट, दैट्स गुड। साथ साथ इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो साथ साथ स्टेप्स फॉलो होंगे, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा उस चीज़ को रन करना। आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन, आपने जो प्रोजेक्ट फाइल गिटहब रिपोजिटरी से डाउनलोड की थी उसको अपने VS कोड में इस तरह से ओपन कर लेना है ताकि हम बाकी के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे फॉलो कर सकें। सो ये मेरे पास इंस्टॉल हो रही है, हम इसको इंस्टॉलेशन होने देते हैं। ओके, अब आपने अपने ब्राउज़र से सिंपली चले जाना है firebase.com पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपने फायरबेस पे किस तरह से अकाउंट बनाना है। जब आप firebase.com पे जाएंगे तो आपके पास इस तरह से फायरबेस का फ्रंट पेज ओपन हुआ, देन आपने यहाँ से कंसोल पे जाना है ताकि आप फायरबेस के एडमिन एरिया पे आ सकें जहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। This so I can see the chat as well. अच्छा, जब आप यहाँ पे आएंगे, मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ रन हो रहे हैं, तो आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट का नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट URL होगा वो बेस करेगा आपके प्रोजेक्ट नेम पे। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग GDG क्लाउड फायरबेस। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। अगेन आपने नाम वो रखना है क्योंकि आपका जो URL बनेगा वो इस तरह बनेगा, फॉर एग्जांपल GDG cloud firebase.web.app। तो इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ नेम, तो आपको कोई प्रॉपर नेम रखना होगा ताकि वो जब आपका URL डेवलप हो जाए तो वो आपके लिए ईजी हो, ताकि आप किसी के साथ अगर शेयर करते भी हैं या अपना प्रोजेक्ट किसी को देते भी हैं तो आपका URL प्रॉपर हो। ओके, तो हमने ये नाम रख दिया है।
उसके बाद इन केस आपका उसने ऑटोमेटेड नेम बना दिया तो आपने सिंपली यहाँ एडिट पे जाना है एंड देन आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ओके, हमने रिपीट, इसमें कोई ज़्यादा मेजर स्टेप्स नहीं थे। आपने सिंपल firebase.com पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसके टॉप राइट पे आपके पास एक ऑप्शन होगा गो टू कंसोल, तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है। देन आप स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने करना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। जब आपने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, तो हम JDG क्लाउड फायरबेस नाम रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से एड भी हो सकता है नेम, इन केस आपने नेम वापस एडिट करना है। जी, पहले आपको अकाउंट रजिस्टर करना होगा। What if we use our own domain? Omar, yes, we will do this step. You can use your own domain as well. वो स्टेप आगे है, ठीक है। तो यहाँ तक सबका ओके हो गया है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। अच्छा, ये ऑप्शन पास नहीं आएगा क्योंकि आई एम यूजिंग गूगल वर्कस्पेस, तो आप लोगों ने सिंपल अपने जीमेल अकाउंट यूज़ करना है। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपने गूगल एनालिटिक्स को इनेबल रखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल सर्विसेज तो एनालिटिक्स अगर इनेबल होंगे तो आपकी ट्रैकिंग गूगल एनालिटिक्स पे ऑटोमेटिकली होगी। तो आप अगर इसको इनेबल रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। तो हम इस पर्पज़ के लिए रखते हैं क्योंकि हम ईच एंड एवरी स्टेप पे जाएंगे ताकि सबके लिए ईजी हो। तो हम यहाँ से इसको इनेबल ही रखेंगे एंड देन नेक्स्ट, देन वी हैव टू सिलेक्ट अवर अकाउंट। तो आपके पास जो आपके अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे, ट्रैकिंग फॉरवर्ड, ट्रैकिंग इज़ बेसिकली कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, कितने विजिटर्स आए हैं, किस लोकेशन से आए हैं, किस कंट्री से आए हैं। देन आप उनका ट्रैकिंग निकाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कौन सी लोकेशन से आपके पास विजिटर्स आए हैं। देन यू कैन एनालाइज द डेटा फॉर एड्स, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। स्टार्ट फॉर द कस्टमर्स, यस हसन, एग्जैक्टली जब आप स्टैट्स निकालते हैं तो आपने डेफिनेटली एड्स लगाने होते हैं लीड्स के लिए। जब आपकी ट्रैकिंग हो रही होती है तो आप उसकी ए बी एनालिसिस आराम से निकाल सकते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू डैट आप उसमें एड्स वगैरह के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप यहाँ से कोई भी अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर ऑलरेडी है। अगर हम एक न्यू अकाउंट बनाते हैं तो देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट एज वेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बना देते हैं GDG क्लाउड फायरबेस के नाम से, ठीक है। ये मैंने एक न्यू अकाउंट बना दिया। देन आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस लोकेशन से यूज़ कर रहे हैं उस अकाउंट को। देन वी विल सेलेक्ट पाकिस्तान। No, you cannot create 5 projects. Free email पे I think 8 projects available होते हैं। If you are using the Google Workspace तो आपके पास unlimited projects हैं यहाँ पे बना सकते हैं। Firebase आपको मतलब फ्री डेटा में बहुत सारा आपको दे रहा होता है डेटा। इवन आप अगर एक CMS पीस पे डेवलप हो जाता है आपका, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक 5 लाख यूजर तक आप फ्री इस पे इजीली होस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमने गूगल एनालिटिक्स का नेम भी रख दिया, लोकेशन भी रख दी है। देन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड देन क्रिएट प्रोजेक्ट। जब हमने इस पर प्रेस किया तो वो अब हमारा प्रोजेक्ट बना देगा। ओके, हमने जो प्रोजेक्ट आईडी रखी थी वो ऑलरेडी टेकन हो गई है, क्योंकि समवन जो हम अभी हमारे साथ विजिटर्स हैं किसी ने सेम नेम से बना दिया, क्योंकि मैंने अभी तक आईडी बनाई नहीं थी, तो उन्होंने शायद यही वाला डोमेन नेम रख दिया। तो वी आर गोइंग टू यूज वन। Okay, we are moving to next and then create an account. Okay, and create project. Can you repeat how many projects? You can host almost 8 projects on a free account, and I don't think so कि कोई
लिमिट है अगर आपके माइनर प्रोजेक्ट्स होंगे और आपका जो इसमें लिमिटेड स्पेस होता है वो एक्सीड नहीं किया गया होगा। इफ इट इज एक्सीडेड तो देन आपके पास स्पेस कम होगा। the same running command on VS command, yes, वसीम, यस इट्स द सेम। हम उस पे भी आते हैं अभी क्योंकि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, देन हम उस स्टेप पे आएंगे तो आई विल शो यू कि आपने किस तरह से रन करना है। समटाइम्स विंडोज में एरर आ रहा होता है, इसलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट का ही यूज करेंगे। ओके, हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो गया है यहाँ पे। अब समवन ऑफ यू आस्क्ड दैट कि हम फ्लटर के लिए इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं या नहीं, तो सिंपली यू कैन सी हेयर, ये आपके पास फ्लटर का ऑप्शन आ रहा है। तो यस, यू कैन यूज दिस प्रोजेक्ट फॉर द फ्लटर। यूनिटी के लिए भी यूज हो सकता है, देन इट्स फॉर द iOS ऐप, एंड्रॉयड, एंड दिस इज फॉर द वेब। तो हम वेब बेस्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिमेंबर, जब आपका प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास ये विंडो शो होगी। तो आप यहाँ पे सिंपली वेब पे क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू राइट द ऐप नेम। बेसिकली ऐप नेम आपका वो होता है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जब गए होंगे तो आपके पास साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आता है कि क्या आप इस ऐप को एक्सेस देना चाहते हैं कि नहीं। उस ऐप का जो नेम लिखा हुआ होता है वो बेसिकली नेम आपने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका नेम लिख लेते हैं GTG Cloud Firebase, हम नेम रख लेते हैं। देन वी आर गोइंग टू इनेबल द होस्टिंग, तो हम होस्टिंग को भी इनेबल करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू रजिस्टर द ऐप। ओके, यहाँ तक सबके स्टेप्स हो गए हैं। यू कैन राइट डन इन चैट ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें। ओके ओके, अब यहाँ पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हम इस स्टेप को फिलहाल के तौर पे स्किप रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ग्लोबली फाइरबेस को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है अपने प्रोजेक्ट में, तो हमें ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, तो ये आपने यहाँ से कॉपी करके नोट पैड पर लिख देना है। इन केस आपसे रह जाता है तो इट्स फाइन, हम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन से भी इसको निकाल सकते हैं दोबारा। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो ये वही स्टेप आपको बता रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमने कर लिए एंड देन गोइंग नेक्स्ट, ये स्टेप्स आगे होंगे एंड देन वी आर गोइंग टू द प्रोजेक्ट हियर। ओके, अब आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन शो हो गई है जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नाउ अब जिस जिस स्टेप पे मैं जा रहा हूँ आपने सेम उसी स्टेप को इम्प्लीमेंट करना है ताकि ऐप रन करने में कोई ऐसा हमें इशू फेस ना हो। तो मूविंग टू द फिल्ड ऑप्शन, सबसे पहले हम चले जाते हैं होस्टिंग वाले ऑप्शन पे। ठीक है, एंड देन गेट स्टार्टेड करेंगे इसको। तो ये स्टेप्स हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर ली हैं, तो हमने इसको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। सी डैट इसने आपको दो यूआरएल्स दे दी हैं जिस पे बेसिकली आपकी जो भी वेबसाइट या आपका ऐप या जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो इन यूआरएल्स पर रन होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि ये अभी अभी हमने डेवलप, इस पर अभी SSL इंस्टॉल नहीं हुआ। आफ्टर 5 to 6 मिनट्स इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, देन इट विल बी विजिबल विदाउट दिस एरर। तो ये आपके पास दो यूआरएल्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आप नेम रखोगे ये उसी नेम पे यूआरएल डेवलप होगा। समवन आस्क्ड कि हम इसमें अपना डोमेन लगा सकते हैं या नहीं, तो दिस इज द ऑप्शन। यहाँ से जाके आप अपना डोमेन्स लगा सकते हो एंड देन यू हैव टू अपडेट द सी नेम्स इन द होस्टिंग, तो देन वो आपके फाइरबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लिक ऑन द होस्टिंग। ओके, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस हैं देन उसमें आपने जाना है बिल्ड के ऑप्शन में एंड देन हियर इज द होस्टिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने प्रेस करना है तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। आपने किसी भी स्टेप को वहाँ से बस ओके ओके और जो भी स्टेप्स आ रहे हैं उन सबको ओके रखना है ताकि, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने स्टेप्स इंप्लीमेंट कर लिए हैं प्रोजेक्ट में। आफ्टर दैट हम ऑथेंटिकेशन पे आ जाएंगे। ऑथेंटिकेशन का स्टेप इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी आप अपने ऐप पे या वेबसाइट पे लॉगिन का प्रोसेस लगाओगे वो सारा हैंडल यहीं से होगा। तो गेट स्टार्टेड पे दबाएंगे इस पे भी
आफ्टर गोइंग इन build you have to click on hosting अगर आप hosting पे जा रहे हो and now we are going in the authentication option ठीक है ओके यहाँ पे हम आ गए हैं तो हमारे पास कुछ साइन इन मेथड्स आ रहे हैं साइन इन में हमने ईमेल का मेथड रखना है कि हमारा यूज़र जो भी है वो अपनी ईमेल से लॉगिन हो सके और इन केस अगर वो अपने वेब साइट पे अपने अकाउंट को फॉरगॉट पासवर्ड करना चाह रहा है तो देन उसको ईमेल रिसीव हो तो हम इस ऑप्शन को भी इनेबल रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू सेव इट ओके उसके बाद हमने एक और ऑप्शन यहाँ पे इनेबल रखना है जो कि हम फ़ोन नंबर का भी रख सकते हैं ठीक है इसमें आपके पास आई थिंक डेली के 50 एसएमएस फ्री होते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ द एसएमएस ओटीपीज तो आपके पास सॉरी 10 एसएमएस फ्री होते हैं तो आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 10 ओटीपीज या किसी भी किस्म के एसएमएस फ्री आप अपनी ऐप से भेज सकते हैं यस हसन ऑथेंटिकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि ओटीपी जाना खाली होता है आपके अकाउंट का जितना भी एक्सेस होता है लॉगिन प्रोसेस जो होता है आपकी ऐप का या वेबसाइट का वो सारा यहीं से हैंडल किया जाता है अगर हम बाकी ऑप्शंस पर जाएं तो अगर आप साइन इन विद गूगल रखना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आप फेसबुक रखते हैं तो फेसबुक पे आपको ऐप बनाना पड़ेगा रिमेनिंग जो भी ऑप्शंस हैं उन सब पे आपका ऐप डेवलप होगा तो ये ऑप्शन इनेबल होंगे इन केस हम फेसबुक पे जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं फेसबुक ने लिखनी है और ऐप का सीक्रेट लिखना है और अगर हम गूगल पे आते हैं तो सेम इज़ द केस हियर यहाँ पे भी आपको वो रखना है लेकिन ये ऑटोमेटिकली लिख लेता है तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से सिलेक्ट करना है तो वी आर नॉट यूजिंग दिस राइट नाउ हम अगर हमने कोई एडवांस इसका सेशन रखा तो उसमें हम ये चीज़ें सारी देखेंगे कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं ओके ये दोनों ऑप्शंस हमने अपने ऐप में रखने हैं जो कि इम्प्लीमेंट भी होंगे तो हमने इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल रख दिया एवरीवन इज ओके टिल नाउ कोई मसला अगर किसी को है तो वी आर ओपन टू चैट आप बता सकते हैं देन वी कैन सॉल्व इट ओके दैट्स फाइन गुड उसके बाद हमने जिस ऑप्शन पे आना है वो आपने आ जाना है फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस पे डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फायर स्टोर का जिस पे आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो सेव होगा तो हम अगर इसके ऑप्शन पे आते हैं तो देन आपको अपने जो भी होस्टिंग होगी उसकी लोकेशन भी सिलेक्ट करनी होगी यहाँ पे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके सर्वर की इसलिए कि जो भी आप सर्वर रखते हैं उसकी लोकेशन आपने जहाँ पे वेबसाइट को डिस्प्ले करवाना है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए तो अभी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हुई हुई है तो हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू आवर लोकेशन तो आप यहाँ से एशिया सिंगापुर रख सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा होता है रिमेनिंग अगर आप अपनी वेबसाइट किसी और लोकेशन के लिए बनाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के लिए तो देन यू विल गो फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपेंड ऑन कि आपने ऑडियंस अपनी वेबसाइट पे कौन सी लोकेशन की ज़्यादा लानी है तो वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इट इन पाकिस्तान तो हम सिंगापुर की लोकेशन रखेंगे फ्रॉम द सर्वर एशिया साउथ ईस्ट 1 ओके और बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी ओके आपने ऐसा करना है कि सिंपल फील्ड के ऑप्शन पर जाना है एंड देन फायर स्टोर डेटाबेस के ऑप्शन पर जाना है ठीक है यहाँ पे है फील्ड के ऑप्शन पे एंड देन फायर स्टोर डेटाबेस तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे इसकी वीडियोस भी हैं तो आप वीडियोस भी फ्री टाइम में देख सकते हैं कि बेसिकली क्या मेथड होता है और ये किस तरह से प्रॉपरली वर्क करता है देन आपने क्रिएट डेटाबेस पे सिलेक्ट करना है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये लोकेशन आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली होती है तो हम वो रखेंगे सिंगापुर रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान सबसे अच्छी होती है ओके देन हम इसको नेक्स्ट करते हैं अब बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है तो आप इसको
प्रोडक्शन मोड रख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट लाइव, और आप उसको टेस्ट मोड पे भी रख सकते हैं जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो हम रिस्ट्रिक्शंस वाले मोड पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली प्रोडक्शन मोड पे जाएंगे, क्योंकि मैंने इसकी जो रूल्स हैं वो ऑलरेडी जो आपने गिट की रिपॉजिटरी से फाइल डाउनलोड की है वहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्लेस किए हुए हैं ये। तो यहाँ से आप उठा सकते हैं आराम से, जो कि रूल्स यहाँ पे अपडेट होंगे। तो हम एक्शन मोड पे रखेंगे एंड देन क्रिएट पे आपने सिंपली इसको क्लिक किया तो ये आप डेटाबेस पे डेवलप हो जाएगा। विल टेक ऑलमोस्ट 1 मिनट टू डेवलप। तो हम जब तक देख, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो यू कैन आस्क। सलमान विच आईडी, सॉरी। ओके, हमारा डेटाबेस यहाँ पे डेवलप हो गया है। अब वो आपका ऐप जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, तो आपने इस ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है और ऐप चेक पे आप आ जाएंगे। ये ऑप्शन उस टाइम इनेबल किया जाता है कि जब आपने जीमेल का ऑप्शन रखना हो, लेकिन हम स्टिल इसको देख लेते हैं क्योंकि ये हमें फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये ऐप नेम जो था वो हमने जीडीजी क्लाउड फायरबेस रखा था, जो कि यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली ये नॉन एसक्यूएल होता है डेटाबेस, क्योंकि इसमें डेटाबेस एज अ फॉर्म ऑफ टेबल्स नहीं बनाया जाता, इसमें प्रोग्रामिंग से ही डेटाबेस डेवलप हो जाता है। तो आपको यहाँ से मैनुअली बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आप यहाँ रजिस्टर पे तो इसमें रिकैप्चा की आईडीज़ लगानी होती हैं, जो कि आप यहाँ पे लगा सकते कैप्चा की वेबसाइट आके, और ये प्रॉपर्ली रजिस्टर हो जाएगा। तो हमें प्रोजेक्ट के लिए इस ऐप को बनाने का कोई इतना खास ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको नहीं डेवलप करेंगे फिलहाल, हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे। अगर हम फायर स्टोर डेटाबेस पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डेटाबेस बिल्कुल एम्प्टी शो हो रहा है। सेक्शंस आपके बेसिकली वो होते हैं जिस तरह आपका यूजर्स हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, स्टैक फॉर्म में शो होते हैं। देन उसके अंदर आईडीज होती हैं, जैसे मैंने आपको स्लाइड पे ऑलरेडी एक्सप्लेन इसको कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग बैक टू द प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने आपको कहा था कि जो आपका मैन फ़ोल्डर होगा उसी को आपने वीएस कोड पे ओपन करना है, ताकि आपके पास जो पब्लिक का फ़ोल्डर आ रहा है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले किया जाए। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ से रूल्स पे आना है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्लेस किए हैं। सारे रूल्स को यहाँ से आपने कॉपी करना है और क्लाउड फायरस्टोर के डेटाबेस पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रूल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने रूल्स पे क्लिक करना है। बेसिकली रूल्स आपके जो होते हैं कि आपकी लोकल मशीन हो या कोई भी आपका ऐप हो, उसको आपने कितना एक्सेस और किन किन चीज़ों का एक्सेस देना है अपने डेटाबेस पे। तो हम जब यहाँ पे इसको पेस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास रूल्स में डिफाइन हुआ हुआ है वो बेसिकली यूजर्स डिफाइन हुए हुए हैं। ठीक है, और यूजर्स आपके वो होंगे कि जो हम अपनी वेबसाइट पे बेसिकली यूजर्स को बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर यूजर्स के ऑप्शन को इनेबल रख रहे हैं ताकि जितने भी यूजर्स हम अपने ऐप से डेवलप हों वो यहाँ पे सेव हो जाएं। कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली ये इसके लिए आपको क्लाउड का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्लाउड का नॉलेज इस तरह से होना चाहिए कि अगर हम इसके फील्ड इन रूल पे आते हैं ना, जो कि ये था, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर इसको उसने फॉल्स दिया हुआ है और उसने स्पेसिफिक आईडीज डिफाइन नहीं की हुई कि आपने क्लाउड को किस तरह से यूज़ करना है। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर एक नॉलेज है, आप वीडियोस देख सकते हैं इसकी यूट्यूब पे, उसमें प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि आप किस तरह से आईडीज बनाते हैं। इन केस अगर आपने एक और आईडी बनानी है तो देन यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस फ्रॉम हेयर। यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है एंड देन पेस्ट इट, और यूजर्स के बजाय आप एम्प्लॉयज़ के नाम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट आईडीज़ यहाँ पे बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन रूल्स। तो हम सिंपली अभी इसको यहाँ से करते हैं कॉपी एंड हम रूल्स में जाते हैं, इसको करते हैं पेस्ट एंड देन हम इसको करते हैं पब्लिश कर देते हैं।
ओके, यहाँ तक हमारे स्टेप डन हो गए हैं, सबके स्टेप्स डन हो गए हैं, तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, डन। अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं एंड देन हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आपने जो मैन फोल्डर है उसी को ओपन रखना है। इसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि ये बात मैंने क्यों बार बार रिपीट की है। नाउ विंडोज़ यूजर्स इजीली यहाँ से टर्मिनल पे जाके न्यू में जाएंगे तो आपके पास टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सिंपली आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन नहीं हुए हुए तो माइट भी पॉसिबल कि आपको कुछ इसमें एरर्स आ जाएं। तो सबसे इजी वे होता है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट का इसमें यूज़ करें, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ नहीं करना चाह रहे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जाएंगे या हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। तो हम बेसिकली अब डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। मैं आपको उस तरह से बता रहा हूँ कि आप सिंपली इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर कमांड प्रॉम्प्ट सिंपल ओपन करते हैं विंडो यूजर्स तो एक्सेस करने के लिए यू हैव टू राइट सी डी एंड देन आपने लिखना है डेस्कटॉप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस पे आ गए, अपने डेस्कटॉप पे आ गए एंड देन यू हैव टू राइट सी डी एंड पीजे इज अवर फोल्डर इन द डेस्कटॉप जिसमें हमारा प्रोजेक्ट है। तो हमने उस पर क्लिक किया तो हम पीजे के फोल्डर में आ गए, ठीक है। ये तो वो स्टेप हो गया कि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर ही हैं। तो इस फोल्डर के अंदर हमारा एक और फोल्डर है। अगर आप बिल्कुल शॉर्टकट चाह रहे हैं तो आप सी डी लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे तो आपके पास इंटरनल जो भी जितने भी फोल्डर्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हमने बेसिकली इस फोल्डर में आना है। फायरबेस मैन के नाम से फोल्डर है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फायरबेस मैन लिखा हुआ है जिसके अंदर ये फाइल्स हैं, और यहाँ पे भी सेम वही फोल्डर आ गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अब हमने ये करना है कि हमने एक चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन की थी, कुछ चीज़ें जैसे हमने npm सर्वर इंस्टॉल किया था। नहीं, पब्लिक वाले फ़ोल्डर में आपने नहीं जाना है। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। फ़िलहाल के तौर पे आपने यहीं पे स्टॉप हो जाना है क्योंकि हमारा सारा प्रोसेस यहीं पे होगा, ठीक है? आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पे मैंने आपको सर्वर बताया था कि सर्वर किस तरह से रन होगा। तो हम सर्वर का लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सिंपल सर्वर रन करने के लिए आपने पब्लि पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर जाना है क्योंकि फ़ोल्डर आपका उसके अंदर है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं क्योंकि जो इंडेक्स की फ़ाइल है वो यहाँ से रन अप होगी। सॉरी, हमने एक स्टेप मिस कर दिया। आपने सबसे पहले ये करना है, प्रोजेक्ट को रन करने से पहले आपने ओथ वाले कोड पे आ जाना है, ठीक है? जो आपका ओथ का यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर है कोड पड़ा हुआ। नहीं, ओथ पे नहीं आना है, आपने फायरबेस कॉन्फ़िग पे आना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी एपीआईज़ जो हैं वो यहाँ पे एंटर्ड होनी है क्योंकि मैंने उनको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। हर किसी की अपनी एपीआईज़ होंगी। एपीआईज़ कहाँ से आपने लेनी है? आपने सिंपल फायरबेस पे आ जाना है, ठीक है? जब हम फायरबेस की ऐप डेवलप कर रहे थे, यहाँ पे प्रोजेक्ट जब हम इसका बना रहे थे तो एक जगह पे ऑप्शन आया था जहाँ पे आपकी एपीआईज़ वगैरह सारी व्यू हो रही थी। तो मैंने आपको कहा था कि आप इन एपीआईज़ को नोटपैड पे लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली वही एपीआईज़ हैं, ठीक है? तो आपने प्रोजेक्ट की सेटिंग में आना है इन केस आपके पास एपीआईज़ नहीं सेव तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड है। तो हमें सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो आपने सिंपल इसको यहाँ से करना है कॉपी और देन आपने वीएस कोड पे चले जाना है और यहाँ से इसकी सिलेक्शन करनी है। इम्पॉर्टेंट नोट देखना है कि ये चीज़ रिमूव ना हो क्योंकि आपके ऐप का जो स्क्रिप्ट है उसमें एरर आ जाएगा एंड देन आपने इसको सिंपल रिप्लेस कर देना है। हमने इसका नाम जो डिफाइन किया हुआ है वो उसी नेम से डिफाइन किया हुआ था ताकि आपके लिए आसानी हो। इन केस किसी और नेम से डिफाइन हुआ हुआ हो तो देन यू हैव टू रिप्लेस देम विद द एक्चुअल एपीआईज़। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। ओके, एवरीवन इज डन विद दिस स्टेप?
अच्छा, बेसिकली ये स्टेप इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में मैं बता दूँ। काइंडली शो द फायर स्टोर रूल्स। फायर स्टोर के जो रूल्स हैं, बेसिकली ये जो फाइल आपके पास थी, जो आपने रिपॉजिटरी से की है डाउनलोड, उसमें एक रूल नाम की फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, वो रूल्स ये हैं। ये आप यहाँ से ले जा फायरबेस के रूल्स में जाके उसको इनेबल, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली कि आपका ऐप का जो कनेक्शन डेवलप होता है, वो डेवलप होता है इन एपीआईज़ के थ्रू, चाहे वो लोकल होस्ट पे रन हो रहा है या चाहे वो किसी होस्टिंग पे रन हो रहा है, क्लाउडवेज या किसी पे भी आपका ऐप रन हो रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसी के ज़रिए आपका ऐप कनेक्ट किया जाता है। तो हमने बेसिकली एक यही चीज़ लगानी थी। रिमेनिंग हमारी ऐप में कुछ फाइल्स हैं जो कि ओथ की प्रॉपर फाइल बनी हुई है। आप इस फाइल को देख सकते हैं। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है। इसके ज़रिए आप इसमें न्यू फंक्शंस भी फीचर्स डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन यूज़, ठीक है। अगर हम इसके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को अपने ब्राउज़र पे लेके जाते हैं, तो ये आपके पास बेसिकली एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाए, नॉर्मली बनाया गया है टेल सीएसएस पे एचटीएमएल यूज़ करते हुए, और इस पोर्टफोलियो साइट की तरह बनाया है। इन केस अगर कोई ऐप डेवलप नहीं करना चाह रहा और वो अपने प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है, तो ये सिंपल एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है जो कि एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो आप इस पे अपनी इंफॉर्मेशन इजीली यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन को न्यू पेजेस बना सकते हैं, इंडेक्स के अलावा अबाउट का पेज एंड देन एवरी अदर पेजेस। उनको रीडायरेक्ट पे लगा के आप अपना साइट भी फायरबेस पे इजीली लगा सकते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया है कि इनकेस अगर कोई चाह रहा है तो वो अपनी पोर्टफोलियो साइट को फायरबेस पे लगा ले, ताकि वो अपने सीवी या रेज्यूमे पे उसको लिख सके या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप लगा सकते हैं। हाउ टू रन दिस? अब यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बनाया लॉगिन का, जिसके से आप जो भी लॉगिन क्रिएट होगा उसके बाद ये डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपने सिंपल ये करना है कि साइन अप पे यहाँ से क्लिक करना है, तो आपके पास साइन अप का पेज ओपन हो गया। एरर्स को देखने के लिए एक डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इंस्पेक्ट पे चले जाएं और कंसोल पे आ जाएं। यहाँ पे आपको आपकी ऐप के सारे एरर्स जो भी होते हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी एरर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं वो देख सकते हैं हमारे पास। तो इसके तो VS कोड एक्सटेंशन लाइव प्रूफ, नहीं, आपको इसको उस तरह से रन नहीं करना मुश्तबा। ये स्टेप गलत है और हमने ना ही इसको ब्राउज़र में ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए ओपन करना है, क्योंकि आपके पास ये जो एरर यहाँ पे कंसोल पे आ रहे हैं, ये क्लियरली आपको ये बता रहे हैं कि फायरबेस आपको एचटीएमएल पे प्रोजेक्ट रन करने से रोकता है ड्यू टू प्राइवेसी, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक लोकल सर्वर बनाना होगा अपने लैपटॉप पे, जिसके ज़रिए हमने इस प्रोजेक्ट को रन करना है, ठीक है। तो हमारे स्टेप्स यहाँ तक के सारे हो गए हैं, ठीक है। अगर हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, या आप यहाँ से टर्मिनल पे आके न्यू पे आते हैं, तो अब हमने लोकल सर्वर बनाना है। लोकल सर्वर बनाने के लिए हमने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऑलरेडी जो इंस्टॉल की थी उसको रन करने का टाइम आ गया। तो रन करने के लिए आपके पास ये वाला प्रॉम्प्ट है, ये मैं चैट पे दे देता हूँ। आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजीली, ताकि आप उसको रन कर सकें। तो रन करने के लिए आपने मैक यूज़र सेम, लिनक्स यूज़र sudo sudo लिखेंगे एंड देन प्रॉम्प्ट लिखेंगे। विंडोज़ यूज़र नॉर्मली इसको अपने ब्राउज़र पे लिखेंगे विदाउट एनीथिंग, ठीक है। आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है एंड देन आपने इसको अपने लैपटॉप का लॉगिन लिखना है, और ये आपके पास यहाँ पे रन हो गया। डू वी हैव टू रन द पब्लिक फ़ोल्डर और मैन? पब्लिक फ़ोल्डर पे आना है क्योंकि इंडेक्स की फ़ाइल रन होगी। तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि आपने उस पे नहीं आना, लेकिन अभी आपने इस प्रोजेक्ट को रन कर लिए, पब्लिक में ही आना है, ठीक है।
इसका स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। जो फायरबेस पे अपलोडिंग होती है तो बेसिकली ये जो फोल्डर डिफाइन है ये अपलोड होता है। तो उस स्टेप पे हम आते हैं। हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया, सबके पास ये चीज़ विजिबल हो गई है, चाहे वो प्रॉम्प्ट में हो रहा है या वीएस में हो रहा है। तो बता सकते हैं यस। ईमान, आपको कहाँ इशू आ रहा है, आप डिफाइन करें। एरर, यस यस। अच्छा, जिन लोगों को एरर आ रहा है आप लोग, या तो आप लोगों का सोर्स जो है वो गलत होगा, आप स्पेसिफिक फोल्डर में नहीं होंगे। तो आप इसको सिंपल कर लें, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, देन न्यू टर्मिनल पे आना है। तो बेसिकली आप उसी फोल्डर में आ जाएंगे और सिंपल आपने इस प्रॉम्प्ट को यूं करके लिखना है और एंटर प्रेस करना है, तो आपके पास यहीं पे सर्वर रन हो जाएगा। ठीक है। शुड एनपीएम पैकेज इंस्टॉल में हाँ जी, हसन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने npm इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपके पास ये रन नहीं होगा। npm इज बेसिकली Node.js, जिसका ऑलरेडी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो आपके पास डाउनलोड होना जरूरी है। आगे जब हम फायरबेस पे अपलोडिंग के प्रोसेस पे आएंगे तब भी npm इंस्टॉल होना जरूरी है। गो लाइव से गाजी, आई डोंट नो अबाउट दिस वन। तो अगर आपके पास रन हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आपने सिंपल या तो इस पे यहाँ से आप प्रेस करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप प्रेस कर सकते हैं, या आप सिंपली इस लिंक पे भी जा सकते हैं। तो आई प्रेफर टू यूज द आईपी एड्रेस वन, क्योंकि ये ज़्यादा रियल टाइम आपको रिजल्ट शो करता है। तो अगर हम न्यू टैब में इसको सिंपल पेस्ट करते हैं तो अब आप देखोगे कि आपके पास सेम वही चीज़ लोकल एड्रेस पे रन हो रही है। और अगर आप अब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आओगे तो आपके पास एरर्स जो हैं वो डिस्प्ले नहीं करेगा वो। ठीक है, सिंपल आपके पास यहाँ पे ये देख रहे हो आप, आपने एक दफ़ा उसको रिफ्रेश करके देखना है तो आपके पास कोई एरर नहीं करेगा। अच्छा, ये वाला एरर इसलिए मैंने ऑलरेडी बताया कि विंडोज़ में कुछ प्राइवेसीज की वजह से वीएस कोड पे अगर आप ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट करोगे पास एरर आ जाएगा। तो बेटर इज टू यूज़ कमांड प्रॉम्प्ट, तो उससे भी हो सकता है। जैम्प या वैम्प यूज़ करने की आपको इसके लिए नहीं ज़रूरत, क्योंकि हम कोई उसमें नहीं जा रहे। आप आईपी एड्रेस के बजाय आप सेकंड लिंक पे आ जाओ, ये जो 8000 वाला है इस जो, तो देन भी हो जाएगा। अगर इन केस किसी के पास ये रन नहीं हो रहा तो इट्स फाइन, लोकल होस्ट पे रन करने के लिए ये होता है। आप इसको सिंपल फायरबेस पे लगा के भी देख सकते हो। तो हम उस स्टेप पे भी आ जाते हैं। मैक्सिमम ऑडियंस का रन हो गया तो हम आगे के स्टेप पे आते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि फायरबेस की सारी डिटेल जो है वो विजिबल हो रही है। दो वार्निंग्स आ रही हैं क्योंकि मैंने टेलविंड सीएसएस को इसमें यूज़ किया है। तो टेलविंड की दो वार्निंग्स हैं जिनको हम इजीली इग्नोर भी कर सकते हैं। कैसे टेलविंड सीएसएस को यूज़ किया है, ये एक प्लस थिंग है। आप किसी भी HTML के प्रोजेक्ट में या अपने किसी भी प्रोजेक्ट में टेलविंड सीएसएस जस्ट इस स्क्रिप्ट से लगा सकते हो, हेडर फाइल पे लगा के, एंड देन यू जस्ट हैव टू यूज दैट टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस आपके पास एक हिल्डन सीएसएस होती है, तो उसके लिए आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ऑनलाइन जाके इनकी वीडियोस देख सकते हो, उसके ज़रिए आप इसको खुद से भी लिख सकते हो। तो उसी के ज़रिए मैंने ये पूरा वेब पेज बनाया है यहाँ पे, जो कि आपके पास रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, तो आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे भी इजीली यूज़ कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पे अगर लॉगिन पे प्रेस करते हैं, कंसोल हम अपना ओपन रखेंगे ताकि इन केस कोई एरर आता है तो हमें यहाँ पे विजुअल हो जाए। क्योंकि अभी ऐप हम डेवलपमेंट स्टेटस में है तो एरर्स आते रहे, इसको रिजॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप। तो आपने सिंपल साइन अप पे प्रेस किया, सी दैट नो एरर इज फाउंड हियर। सिंपली फायरबेस का ओथ भी एक्टिव हो गया, फायरबेस का इंस्टेंट भी एक्टिव है, और यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह भी आ रही है। रिमेंबर कि ये इन्फॉर्मेशन खाली आपके लिए विजिबल होती है हो रहा है, और कंसोल एरर्स जो हैं वो यहाँ पे ओथ में, इसलिए कि इन केस कोई एरर आ रहा है तो वो शो हो जाए, या आप बाद में ऑफ में, जैसे यहाँ पे हमने ये चीज़ की हुई है, या आप यहाँ से हटा को अगर आप डेवलपर हैं। ठीक है, अब हम एक नए, तो आपने मेरे साथ स्टेप बाय
स्टेप यहाँ पे अकाउंट बनाना है, तो हम अपने नेम से अकाउंट बना लेते हैं एक, ठीक है। अच्छा, जो आप ईमेल लिखेंगे वो ईमेल होना चाहिए, क्योंकि उस पे एक यूआरएल आएगा जो कि ओथ से उसको इनेबल रखा हुआ है, तो जब तक आपका ईमेल वेरीफाई नहीं होगा आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा, तो वो भी हम लाइव देखेंगे। और पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने साइन अप पे प्रेस करना है। जब आपने साइन अप पे यहाँ से प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि वेरिफिकेशन ईमेल सेंट, प्लीज चेक योर इनबॉक्स, एंड उसके बाद ही आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन केस कोई बंदा ईमेल चेक नहीं कर रहा और वो सिंपल लॉगिन पे जा रहा है और यहाँ जाके वो अकाउंट लिख रहा है और उसका पासवर्ड लिख, तो वो लॉगिन उस टाइम तक नहीं होगा जब तक ईमेल वो हमें वेरिफिकेशन का कह रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं और अपने जीमेल के अकाउंट पे आ जाते हैं, लिखा था यहाँ पे, जहाँ स्टेप हो गया राइट डन, ताकि लग जाए कि सबका स्टेप यहाँ तक डन हो गया। ओके, तो अगर आप अपने जीमेल के अकाउंट पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि फाइव किया एक सेंड, जिस पे वेरिफिकेशन का मेथड शो होगा। आपके पास शो कैसे हुआ, आप ऑथेंटिकेशन से आपने जो इन ऑप्शंस में ईमेल का ऑप्शन इनेबल किया था ना, उसकी वजह से। इन केस अगर आपका ईमेल का ऑप्शन से इनेबल नहीं है तो आपको ईमेल रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस होते जाएंगे। तो यहाँ पे इसने आपको एक यूआरएल दिया है, इस यूआरएल पे आपने क्लिक किया तो आपका अकाउंट न्यू टैब में ओपन होकर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे फायरबेस का ऑफिशियल ये यूआरएल है, जिस नाम से आपने ऐप बनाया था उस नाम से आया है। इन केस समवन आस्क्ड मी कि अगर हम अपना यूआरएल लगाते हैं या डोमेन नेम लगाते हैं तो देन ये ऑटोमेटिकली उससे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर याद हो, आज से 1.5 साल पहले एक ऐप आया था मल्टीप्लेयर कार पार्किंग के नाम से, आईओएस और एंड्रॉयड के लिए था। तो बेसिकली उसके लिए जो डेटाबेस यूज़ हो रहा था वो बेसिकली फायरबेस ही यूज़ हो रहा था। अगर किसी ने अपना फॉरगॉट पासवर्ड उस ऐप पे यूज़ किया हो तो फायरबेस का ही ईमेल आता था। तो ये चीज़ ऐप्स पे भी यूज़ होती है, वेबसाइट पे भी यूज़ होती है, वेब ऐप पे भी यूज़ होती है। तो यहाँ तक हमारा स्टेप डन हो गया। नाउ वी कैन लॉग इन टू अवर ऐप यूजिंग दिस ईमेल। अब हमारे पास एरर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। डैशबोर्ड लेआउट मैंने इसका थोड़ा सिंपल बनाया है, ठीक है। यू कैन यूज द डैशबोर्ड लेआउट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यहाँ पे हमारा नेम भी डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। इस पे एक रिस्ट्रिक्शन रखी गई है कि इन केस अगर आपके पास आप लॉगिन नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, वापस होम पेज रीडायरेक्ट हो जाता है। तो HTML साइट तो थोड़ा रीडायरेक्ट प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, पेज ओपन होता है, स्क्रिप्ट रन होता है, देन वो रीडायरेक्ट होता है। तो प्रोग्राम सारा आपके पास विजिबल है, मेरा रिपोजिटरी इनेबल है, तो आप वहाँ से किसी भी टाइम कोड को वापस डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब आप डैशबोर्ड पे लॉगिन हो गए तो आपका ईमेल शो कर रहा है, यहाँ पे आपका नेम शो कर रहा है, आपके पास लॉग आउट का ऑप्शन है, यू कैन लॉग आउट एट एनी टाइम। डिफरेंट फीचर्स आप रख सकते हैं, डेटाबेस में ऑप्शंस आप खुद डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आखिरी स्टेप होगा कि इसको फायरबेस पे लेके जाना, कि अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस पे किस तरह अपलोडिंग करेंगे। तो हम फिलहाल के तौर पे सर्वर रोक लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब हमें लोकल की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको लाइव लेके जाएंगे। लोकल पे इसलिए रन होता है ताकि आप प्रोजेक्ट सारा लोकल होस्ट पे डेवलप हो जाए, उसको क्लाउड पे ले जाए। तो अब हम थोड़ी सी चीज़ें प्रोग्राम की भी देख लेते हैं कि ये तो बेसिकली हम आ जाते हैं फायरबेस पे, ठीक है। और आप अगर फायर स्टोर डेटाबेस पे आएंगे ना यहाँ से, तो अब आपके पास जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है ना, वो बेसिकली किस नाम से हुआ है, यूजर्स के नाम से। उसने आपकी यूआईडी बनाई है जो कि आपकी यूनिक आईडी है, और उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन सारी शो हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेट आ गई है कि किस डेट को अकाउंट बने, ईमेल आ गई है। ये वाला स्टेप वहाँ से
इनेबल नहीं रखा गया, तो इसलिए यहाँ पे स्टैट्स इसका इनेबल नहीं हुआ और आपका नेम आ गया। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि आपका जो पासवर्ड था वो किधर गया, तो वो हैश में चेंज हो जाता है। हैश इज़ बेसिकली की आपकी होती है, फायरबेस ऑटोमेटिकली उसको हैश की में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे आपके ऑथेंटिकेशन में सारे ईमेल्स विजिबल होंगे। इन केस अगर किसी ने अपने पासवर्ड को या आपने रीसेट करना है, तो यू कैन रीसेट अकाउंट को, टेम्परेरी लॉक भी लगा सकते हैं कि उसका अकाउंट अब मतलब के या अकाउंट को यहाँ से रिमूव भी किया जा सकता है। ओके, यहाँ तक हमारे सारे स्टेप्स हो गए हैं, सबको सबके स्टेप्स हो गए हैं, किसी को कोई मसला तो नहीं आया। लास्ट स्टेप है हमारा कि हमने इसको ऑनलाइन कैसे लेके जाना है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप यूजर्स बनाते जाएंगे उतना आपका शो होता जाएगा। यूजर्स का डेटाबेस चेंज करने के लिए सिंपली आपने आ जाना है, आप आके सर्च कर यूजर्स को। ठीक है, तो बेसिकली रीड या सेट डॉक के नाम से जिसमें इसने यूजर्स को शो किया है यूजर्स के बीच में। अगर आप इन केस यहाँ पे यूजर्स के लिखते हैं आप ऐप बनाने के लिए, तो ये एक मैं आपको प्लस चीज़ बताता हूँ कि आपने रूल्स में आके जो आपके यूजर्स का जो नेम यहाँ पे रूल्स में लिखा हुआ है उसको भी आपने लाजमी कुछ और रखना है जो आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये दोनों आईडी सेम होंगी। तो ये यहाँ से डेटाबेस बनाएगा क्लाउड पे। ठीक है, देन हमने उसमें उसके अंदर डिफाइन किया हमारा ईमेल जाए, नेम जाए, डेट जाए और ईमेल वेरिफिकेशन तो हमने क्रिटिकली फॉल्स पे रखा हुआ है। ठीक है, यह इसलिए रखा था कि कोई भी बंदा विदाउट वेरिफिकेशन अगर इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको ट्रू भी रख सकते हैं। ये ट्रू करेंगे तो अब विदाउट वेरिफिकेशन बंदा लॉगिन हो सकता है। ठीक है, जो भी आपका विजिटर होगा या यूजर होगा। ओके, तो हमने दो पर्सपेक्टिव से अपना ऐप बनाया है। वन पर्सपेक्टिव इज आप इसको नॉर्मल यूज पे ला सकते हैं, अपनी सिंपल एक वेबसाइट भी बना सकते हैं इस तरह से। अगर आप एक कोई ऐप बनाना, हमने इसको ऐप के से भी यूज किया। ठीक है, अब ने इस प्रोजेक्ट को लोकल होस्ट से फायरबेस पे लेके जाना है। तो उसके लिए सिंपल सा नहीं रहना है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। हम इसको कैंसिल देते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने पब्लिक के नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, तो हम दोबारा से VS कोड पे आएंगे। ठीक है, और सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे CD डेस्कटॉप। ठीक है, हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए और CD के बाद हम आ गए पीजे का फोल्डर। पीजे के फोल्डर के अंदर हमारा एक और फोल्डर है मैन का, तो हम फायरबेस मैन के फोल्डर पे आके यहाँ पे रुक जाए। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो मैं आपके साथ 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 प्रॉम्प्ट्स भी शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, वो मैंने लिखी हुई। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ चैट में, आप ऐसा लिखिएगा। अब आपने ये करना है कि आपने करना है फायरबेस। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं लिखा, अब मैग्नस लिखना है, विंडोज यूजर ने कुछ नहीं लिखना, फायरबेस लॉगिन। ठीक है, और आपने एंटर प्रेस करना है, अपना लॉगिन लिखना है, तो वो आपको बता दे। आप आएगा, एक मिनट को लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि हम सेम स्टेप से इसको फॉलो कर सकें। देख सकें। Firebase is better than Node.js. Yes, Firebase is somehow better than Node.js, but usually क्योंकि Firebase के फ्री वर्जन में आपके पास बहुत लिमिटेशंस होती हैं। अगर आपके पास Blaze वर्जन है तो then it is, and Node.js is basically a backend language जिसमें Express.js और Node.js यूज होता है। तो अगर हम इसके एडवांस लेवल पे आते हैं तो then we are going for that। उसमें हम देखेंगे कि फायरबेस को नोड जेएस के साथ करते हैं और उसमें आपके पास बहुत एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं। इन आप इवन एप्स भी इजीली बना सकते हैं जिनकी सारी आप फायरबेस पे से कर सकते हैं।
Yes, it is suitable for large projects. In case अगर आपके पास Blaze project है तो Blaze plan है तो Firebase का फ्री प्लान पे आई डोंट रिकमेंड आप MongoDB पे जा सकते हैं, लेकिन वो भी फ्री वर्जन पे कोई इतना ज़्यादा नहीं देता, उससे अच्छा Firebase है। अच्छा, मूविंग बैक टू द फाइल, हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है तो हमने प्रोजेक्ट अपलोड करना है, तो आपने सिंपल करना है इसको sudo Firebase login। ठीक है, मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, लेकिन इट्स वेरी सिंपल, आपने सिंपल Firebase login लिखना है। ठीक है, तो इसमें कोई इतना खास स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं हो रहे, जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। तो अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि वाई प्रेस करें, अपने ब्राउज़र को एक्सेस दें। बिकॉज आई एम यूजिंग मल्टीपल ब्राउज़र्स, तो मैं इसको मैनुअली लेके जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे सफारी पे रीड कर रहा है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं मैनुअली यहाँ से इस लिंक को करता हूँ कॉपी, और अपने जिस अकाउंट से मैंने उसको एक्सेस देना है, जिस अकाउंट पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, जिस जीमेल पे, जिस ब्राउज़र से, मैंने उसी पे जाके इस लिंक को लगाना है। मैं उस पे इसको लगाऊंगा तो वो मुझसे कहेगा कि आपने इस अकाउंट से एक्सेस देना है, तो मैं जस्ट सिंपली इसको प्रेस करूंगा, यहाँ से एक्सेस दूंगा। आई हैव टू राइट माय पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद वो आपसे एक्सेस मांग रहा है, तो आपने इसको सिंपल एक्सेस देना है। कुछ रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है कि गूगल एनालिटिक्स यूज़ करेगा, फायरबेस को सी एडिट रिमूव का ऑप्शन है, और क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा। दीज ऑल ऑप्शंस आर गुड टू गो विद अस, तो हमने इसको अलाउ कर देना इजीली। तो ये आपको कह रहा है कि फायरबेस CLI इज सक्सेसफुली लॉग इन, और अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आओगे तो यहाँ पे भी वो आपको बता देगा कि आप इस अकाउंट से लॉग इन हो चुके हैं। ठीक है, एवरीवन इज गुड टू गो हियर, किसी को कोई इशू तो नहीं आया? ओके, अब हमने क्या करना है कि आपने इसको करना है फायरबेस इनिट करना है। ठीक है, मैं चैट पे भी लिख लेता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट इट, स्पेलिंग ठीक है। तो आपने फायरबेस इनिट करना है, सॉरी हैव टू राइट sudo। ठीक है, मैंने इसको फायरबेस इनिट जब किया ना, तो वो इंफॉर्मेशन वगैरह लेगा कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपके पास डेवलप हुआ हुआ है या आपने डेवलप। केयरफुली आपने अपने कीबोर्ड की डाउन है उनका यूज़ करना है, और आपने इस ऑप्शन पे आना है, होस्टिंग सेमीकोलन configure file for Firebase hosting and optionally set up GitHub Actions deploy। इस ऑप्शन पे आना, you have to press the space bar button। तो space bar पे आप देख रहे हैं कि वो इसको select हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन सबका select हो गया, मतलब space bar के साथ use space bar and arrow keys up down यहाँ पे, यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, and then you have to press enter की। जब आपने enter किया, तो अब वो आपसे कह रहा है कि आपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कोई आपका ऑलरेडी है या आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने यहाँ से इसे यूज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और जब आपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट थे वो सारे आपके पास शो हो जाएंगे। तो हमने बनाया था GDG क्लाउड फायरबेस 1। ठीक है, तो जैसे आपने उसके ऊपर एरो से लाना है एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर की। तो वो उसने सिंपली यहाँ पे उसको select कर दिया प्रोजेक्ट। नाउ इट इज सेइंग दैट व्हाट डू यू वांट टू यूज योर पब्लिक डायरेक्टरी। तो कोई ना कोई फोल्डर होना जरूरी है, तो दैट्स व्हाई आई हैव सेड यू कि आपका जो पब्लिक का फोल्डर है वो यहाँ पे होना जरूरी है। तो हम अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं तो उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जस्ट यू हैव टू प्रेस एंटर। तो उसने आपका ये वाला जो पब्लिक का फोल्डर है वो उसने ये सिलेक्ट कर दिया। अब वो आपसे कह रहा है कि आपकी index.html की फाइल ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, आप उसको रिप्लेस करना कह रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो एंड कर दें। तो हमारी ऑलरेडी इंडेक्स है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो वी हैव टू गो विद एन नॉट। ठीक है, और गिटहब रिपोजिटरी से अगर आप अपने प्रोजेक्ट को फिलहाल नो करेंगे, क्योंकि हमारा इतना लार्ज स्केल प्रोजेक्ट या मल्टीपल डेवलपर्स ने इसमें कोई काम नहीं किया कि हमने इसको रिपोजिटरी, आपका प्रोजेक्ट रिपोजिटरी पे, तो देन यू हैव टू प्रेस वाई एंड देन आपको अपनी रिपोजिटरीज करनी होती है। सेम प्रोसेस होता है, गिटहब से अकाउंट लॉगिन होगा, सेम रिपोजिटरी सिलेक्ट होगी, गुड टू गो। पर अभी हम इसको नो करेंगे, सिंपल। ठीक,
और अब वो कह रहा है अनचेंज्ड है, वो कह रहा है फाइल पब्लिक HTML ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसको ओवरराइट करना है, तो आपने इसको भी नो करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो गए हैं और उसने सारी चीज़ें हमारे पास डन कर दी हैं। टू गो विद दिस प्रोसेस, किसी को कोई इशू तो नहीं है? व्हाट डू यू यूज योर पब्लिक डायरेक्टरी? पब्लिक डायरेक्टरी हमारी बताया था यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमने उसको यूज किया है। ठीक है, अगर केस आपका ये फोल्डर किसी और नेम से होता तो देन आपने वो वहाँ पे खुद से लिख देना था। ठीक है, पब्लिक डायरेक्टरी बेसिकली एक हिल्डन नेम है जो कि फायरबेस खुद ब खुद उठा लेता है। तो मैंने आप सबकी आसानी के लिए इसका नाम यही रखा था। इसका नाम XYZ होता तो हम प्रीवियस पे जहाँ पे वो उसने हमसे ये नाम मांगा था, यहाँ पे लिखने का हमारे पास ऑप्शन था, तो हम वहाँ पे XYZ। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हमारा सारा प्रोसेस शुरू हो गया, सारा सबका डन हो गया। अब लास्ट स्टेप है कि इसको अपलोड कैसे करना है। तो आपने सिंपल, मैं चैट पे पहले लिख लेता हूँ, आपने करना है फायरबेस डिप्लॉय। ठीक है, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, आपने जस्ट सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, यूजर्स लिखेंगे sudo फायरबेस डिप्लॉय। ठीक है, डिप्लॉय मीन कि हम लैपटॉप से इसको अब क्लाउड में अपलोडिंग के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल इसको प्रेस किया और आपकी जितनी भी फाइल्स पब्लिक के फोल्डर के अंदर है ना, ये सारी फाइल्स ये आपके क्लाउड में अपलोड हो जाएंगी और ये प्रोजेक्ट आपका लाइव उस यूआरएल पे आ जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड एंड प्रोजेक्ट का कितना साइज है। हमारा बहुत नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है, बहुत स्मॉल सा प्रोजेक्ट है, तो इट वुडंट टेक मच टाइम। और ये हमारा प्रोजेक्ट अपलोड हो गया सक्सेसफुली। उसने आपको यूआरएल दे दिया कि इस यूआरएल पे आपका प्रोजेक्ट अपलोड है। आप सिंपली इस यूआरएल पे जाएं, यहाँ पे इसको पेस्ट करें और ये स्टिल आई थिंक थोड़ा सा टाइम ले रहा है फायरबेस, तो आप इसको यहाँ से अनसेफ साइट करके जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इस यूआरएल पे ये आ गया। एसएसएल का अगर किसी को आइडिया हो तो एसएसएल मोस्टली 24 आवर्स लेता है, उसके बाद आपका एसएसएल इंस्टॉल होता है। गूगल ने ये ऑप्शन इसलिए थोड़ा सा लेट रखा है कि ताकि कोई बंदा फ़ौरन से स्पैमिंग साइट बना के किसी को स्पैम ना कर सके। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम क्योंकि हमने अभी लाइव प्रोजेक्ट बनाया है। मैं आपको कुछ अपने प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स भी दिखा देता हूँ, हमने इसी पे डेवलप किए हुए, उनमें ये एरर नहीं आ रहा है एसएसएल का। ठीक है, तो सबके पास आई होप सो रन हो गया होगा, उनका प्रोजेक्ट लाइव आ गया होगा। आपने सिंपली लॉगिन पे प्रेस करना है, वही ईमेल सेलेक्ट करना है जो आपने अकाउंट बनाने के लिए यूज़ किया था, वही लॉगिन और अपना लॉगिन प्रेस करना है, लिखना है इस पर यूज़र नेम ईमेल आईडी एंड वी आर गुड टू गो। हमारा प्रोजेक्ट लाइव रन हो रहा है। आइदर इट इज़ योर वेबसाइट और वेब ऐप, या जो भी आपने ऐप बनाया होगा वो यहाँ पे व्यू हो जाएगा। आप अपने इसको नॉर्मल वेबसाइट भी बना सकते हैं। इन केस अगर आपने बिल्कुल सिंपल सी HTML साइट बनाई है तो देन अवॉइड एवरी स्टेप, जस्ट इनेबल द फायरबेस होस्टिंग ऑप्शन। यहाँ से ये वाला ये होस्टिंग वाला ऑप्शन आपने इनेबल किया। और जो मैंने आपको फायरबेस के फायरबेस अपलोडिंग वाले रूल्स बताए थे, फायरबेस सबसे पहले फायरबेस को आपने इंस्टॉल करना है, देन आपने फायरबेस को लॉग इन करना है, देन आपने फायरबेस क्रिएट करना है, फोल्डर सेलेक्ट करना है एंड देन फायरबेस डिप्लॉय करना है। तो आपकी सिंपल HTML वेबसाइट भी इजीली अपलोड हो जाएगी जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। Seeing this because you are speaking the bills। ठीक है, तो हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा वो हमने आज का सेशन रखा था वो बेसिकली इसी पे था कि हम लोगों ने यहाँ पे जो जो चीज़ें आज देखी हैं वो हमने पोस्टिंग देखी है जिसमें आपका यूआरएल ये आ रहा है और टाइम अपलोड हुई है, वो टाइम भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, आपका ईमेल डिस्प्ले कर रहा है, आपका यूआरएल डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप अपना डोमेन लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे अपना डोमेन नेम, सी नेम्स लगाएंगे और आप वहाँ पे लिख सकते हैं ऑथेंटिकेशन पे जाके यूजर्स जितने ज़्यादा आप बनाते जाएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे। फायरबेस डेटाबेस तो यूजर्स की इंफॉर्मेशन बस डिस्प्ले हो जाएगी और आप रिमेनिंग ऑप्शंस यहाँ से खुद देख सकते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल लेवल पे हम नए ऑप्शंस देखने थे। अगर हम इसके एडवांस लेवल पे आते हैं तो फिर हम बाकी देख सकते हैं एंड हमारे पास इतना टाइम है कि हम बाकी देख सकें। यूट्यूब वीडियो आप अपनी पसंद से देख सकते
देखते हैं कि के लिए कौन सी यूट्यूब वीडियो सूटेबल है। हम Q&As भी देख लेते हैं, कुछ लोगों ने Q&As भी सेंड किए हैं। Excuse me, आ, Samad.